Assalamu alaikum, my dear students. So here I am continuing with the same chapter, thermodynamics, and in today's lecture, the various things, the various characteristics of adiabatic process will be discussed. And already I discussed the thermodynamic work during adiabatic process. In the previous lecture, I also discussed about the equation of state for adiabatic process. And you must remember, as far as the equations of state for adiabatic process is concerned, they are very much important from entrance point of view. So I suggest that you should try to memorize those equations of state for adiabatic process. Now, today's topic is regarding the slope of adiabatic process. अगर बेटा आपको याद होगा, मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में भी स्लोप पढ़ाया था. मैंने आपको बताया था कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड दिस ग्राफिकल वेरिएशन, हाउ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, और वो जो अगर आप ग्राफिकली दिखाते हो हाउ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम changes with respect to volume graphically, that diagram is known as indicator diagram. So what indicator diagram is? Yes, what indicator diagram is? Indicator diagram, it shows us the graphical variation, yes, of what? The pressure of the system with respect to the volume. और आपको मैंने बताया था कि जो कंडीशन है आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो वो कंडीशन ये है कि दिस प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो. सो व्हेन दिस प्रोसेस इज स्लो, देन इसका जो स्लोप होगा, इसमें जो प्रेशर चेंज आती होगी वो बहुत धीरे धीरे आती होगी, तो इसका स्लोप उतना सिटी पर बेटा नहीं होगा. इट विल बी लाइक दिस. सो इट मींस यहां पर, और याद होगा आपको आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप आता था dp by dv, you know, slope from the graphical or geometrical interpretation of derivative is actually what? Slope. या मैंने पढ़ाया था आपको डिफरेंशिएशन में, अगर आपने कोई भी पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे बेटा आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उस टेंजेंट का स्लोप निकाला, तो वो स्लोप आपको बेटा क्या देगा? डेरिवेटिव. किस पॉइंट पे? उसी पॉइंट पे. मान लो आपने ये पॉइंट लिया, यहां पर परपेंडिकुलर डाला और यहां पे आपने टेंजेंट डाला. इस टेंजेंट का अगर आप स्लोप निकालोगे, वो क्या देगा? डेरिवेटिव. किसका? प्रेशर का. किसके साथ? वॉल्यूम के साथ. एट दैट पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट. इज दैट क्लियर? So slope means what? When I am talking about the slope, it gives us the rate of change of pressure with respect to the volume. So here it is the same thing. I want to determine dP by dV, rate of change of pressure with respect to the volume for adiabatic process, और adiabatic curve भी लिख सकते हैं. तो ये क्या आ गया? स्लोप आ गया ना. किसका स्लोप आ गया बेटा? एडियाबैटिक कर्व का. तो ये हमें यहां पे निकालना है. और याद होगा आपको ऑलरेडी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बेटा, जब हमने ये स्लोप निकाला था आइसोथर्मल के लिए, ये जो स्लोप बेटा निकलता था, दैट वाज इक्वल टू -p divided by pv. So this negative sign indicates when volume increases, pressure decreases. It is obvious. So same will happen here. लेकिन हमें क्या देखना है, यहां पे क्या होगा? स्लोप. तो याद होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने स्लोप कैसे निकाला था बेटा? मैंने पहले इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी थी, pv is equal to constant. Then I have differentiated this equation on both sides with respect to volume. But does this adiabatic process obeys this equation of state? No. But as far as the adiabatic process is concerned, the equation of state is like this. PV raised to the power gamma is equal to constant. PV is equal to constant. It is an equation of state. It is obeyed by an ideal gas which is kept under isothermal process. And this equation is obeyed by, again, by an ideal gas
but which is kept under adiabatic conditions, which is kept under adiabatic process. तो क्या करोगे बेटा, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अगर हमें dp by dv निकालना है, we will do one thing, we will differentiate the above equation on both sides with respect to volume. ओके, तो बेटा आप इस इक्वेशन को दोनों साइडों से किसके साथ बेटा डिफरेंशिएट करोगे, वॉल्यूम के साथ, independent variable के साथ. Here the pressure is a dependent variable because you must know from the basics of the mathematics, the dependent variable is drawn along the ordinate side and the independent variable is drawn along the abscissa side. तो क्या करेंगे बेटा, जब while differentiating it you will write it d by dv of p v raised to the power gamma is equal to d by dv of k. ठीक है बेटा, ओके. सो नाउ इसका डिफरेंशिएशन करके कैसे करोगे इसको डिफरेंशिएट, यू नो, शायद मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था दैट व्हेनेवर द टू क्वांटिटीज आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म and you are interested in finding its derivative, then the simple working rule is the product rule. And what product rule is? Take this as first, take this as second. First as it is, पहले को ऐसे रखो, into differentiation of second, plus second as it is into differentiation of first. So let me solve this. First as it is, p as it is, into differentiation d by dv of v raised to the power gamma, okay, plus second as it is. Second क्या है बेटा, v raised to the power gamma into differentiation of first d by dv of p. Is that clear? Is equal to, और आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, कंडीशनल कांस्टेंट. मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, कंडीशनल कांस्टेंट किसको कहते हैं, वो कांस्टेंट जो किसी कंडीशन के तहत कांस्टेंट हो. सो इट इज जीरो बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ आइसोलेटेड कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज जीरो. तो यहां पर बेटा इसको सॉल्व करना है, p as it is into, listen, d by dx of x raised power n, you must remember the formula, power down base raised to power minus 1. So shall I write it like this, gamma down, power down, base is v raised to gamma minus 1, power minus 1. Okay, internal differentiation तो करनी नहीं है because d by dv of v is 1, that is understood, plus v raised to the power gamma dp by dv ऐसे ही रखेगी. क्यों बेटा, dp by dv को ही स्लोप कहते हैं ना, ये किसका स्लोप है, एडियाबैटिक का. सो आई विल कीप इट इन द ब्रैकेट and I will put the subscript here, it is the adiabatic. So dp by dv, it is the slope of adiabatic curve, और वो हमें निकालना है, is equal to 0. तो यही हमें निकालना है, तो निकाल सकते हो आप. इसको थोड़ा रीअरेंज करो, गामा p v raised to the power gamma minus 1, ओके. तो is equal to, बेटा इस सारी क्वांटिटी को जब राइट साइड से लोगे ये माइनस आएगा, यहां माइनस v raised to the power gamma dp by dv of which curve, adiabatic curve, dp by dv. ओके, याद रखो dp by dv क्या है, स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, इट इज द स्लोप. सो यही तो निकालना है. तो क्या लिखोगे बेटा, माइनस को यहां ले जाओ, माइनस गामा p v रेज्ड टू द पावर गामा माइनस 1, और इस v गामा को यहां लाओ बेटा, ये नीचे ऐसे आएगा, v रेज्ड टू द पावर गामा इज इक्वल टू dp by dv of, yes, adiabatic curve.
Okay, so I will further solve it. It is quite simple to solve. Minus gamma p v raised to the power gamma minus 1 v raised to the power minus gamma, क्योंकि ऊपर आके ये इनवर्स बन जाएगा. It is equal to dp by dv of adiabatic curve. Okay beta, so then क्या लिखोगे बेटा आप? माइनस गामा पी, bases are same, powers are added. What it will become? V raised power gamma minus 1 minus gamma is equal to dp by dv of which curve? Adiabatic curve. तो बेटा क्या आएगा यहां पे? माइनस गामा पी, बेटा ये गामा और ये गामा कैंसल, यहां बचा v रेज पावर माइनस 1 इज इक्वल टू dp by dv of which curve? Adiabatic curve. तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस गामा p डिवाइडेड बाई v, बिकॉज v रेज पर माइनस 1 नीचे आके ये बन जाएगा. सो इट विल बी लाइक दिस, dp बाई dv ऑफ adiabatic curve, या इसका नाम क्या है? व्हाट एक्चुअली इट इज द स्लोप ऑफ विच कर्व? adiabatic curve. तो बेटा यहां पर आपको जो स्लोप निकला adiabatic कर्व का, वो किसके बराबर बेटा निकला? इट इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स p बाई v. तो जब आपको ग्राफ में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कैसे आप निकालोगे, अच्छे से नजर रखो बेटा. जैसे आपके पास एक इंडिकेटर डायग्राम बेटा दी है एक एडियाबैटिक प्रोसेस की, एंड नाउ यू नो दिस प्रोसेस इज वेरी मच फास्ट, सो ऑब्वियसली इसका स्लोप ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टीपर होगा. सो लेट इट बी लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द ग्राफ फॉर एडियाबैटिक. नाउ टेल मी, आप ये निकालना चाहते हो कि किसी भी पॉइंट पे, मान लो आप इस वॉल्यूम पे आप रेट निकालना चाहते हो, आप इस ग्राफ का स्लोप निकालना चाहते हो, तो क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्लोप यहां सेम नहीं होगा. नाउ व्हेन यू वांट टू नो व्हाट इज द स्लोप हियर, आप क्या देखोगे बेटा? आप देखोगे इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है? लेट इट बी V1. इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है? लेट इट बी P1. ओके, नाउ तो स्लोप यहां कितना आएगा? Slope of this curve at this point V1 will be equal to minus gamma times gamma. मैंने बताया that I will explain it in kinetic theory of gases. फिलहाल आप ये समझोगे it is an adiabatic constant, it is an adiabatic ratio. So gamma वहां given होता है क्वेश्चंस में. मोनोएटॉमिक के लिए like it is 5/3, for diatomic it is 7/5, for triatomic so on it is 1.33, 1.2. सो वो आपको याद रखने की अभी जरूरत नहीं है. सो फिलहाल स्लोप किसके बराबर निकला? माइनस गामा टाइम्स, उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा दैट विल बी माइनस गामा टाइम्स P1 डिवाइडेड बाई V1. एडियाबैटिक कांस्टेंट दिया होगा, प्रेशर यहां पे पता है, इस पॉइंट पे वॉल्यूम पता है, तो आपको इस पॉइंट पे पता चलेगा इस ग्राफ का स्लोप क्या है. तो आपको पता चलेगा इस पॉइंट पे कितनी रेट है, किस प्रोसेस से, हाउ फास्ट द प्रोसेस इज गोइंग एट दिस पॉइंट. इफ यू वांट टू नो हाउ फास्ट द प्रोसेस इज गोइंग हियर, what you will take? Let the volume here is V2, let the pressure here it is P2, then what will be the slope here? Minus gamma P2 by V2. लेकिन अब हमें बेटा एंट्रांस में, AIEEEs में, इनफैक्ट CETs में भी इस पे एक क्वेश्चन अक्सर आता था, एंड इनफैक्ट उसकी और भी प्रोबेबिलिटी है आने की. वो क्वेश्चन मैं यहां बताना चाहता हूं. सो फिलहाल हमें यह पता चला कि जो आइसोथर्मल होता है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या लिखते हैं उसको? dp. स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dp बाय या d बाई dv ऑफ p ऑफ विच कर्व? आइसोथर्मल कर्व. आइसोथर्मल प्रोसेस किसके बराबर होता था? शायद आपको याद होगा, माइनस
P/V। लेकिन अब एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस d/dv ऑफ P ऑफ विच कर्व, एडियाबैटिक कर्व, किसके बराबर निकला बेटा? माइनस गामा टाइम्स P/V। एनी कंफ्यूजन्स? नाउ मैं आइसोथर्मल कर्व का स्लोप और एडियाबैटिक कर्व का स्लोप आपस में रिलेट करना चाहता हूं, एंड दैट इज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो मैं क्या करूंगा? देयरफॉर dp यानी कि स्लोप dp/dv ऑफ एडियाबैटिक कर्व, बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, गामा टाइम्स माइनस P/V। अरेंज किया थोड़ा सा, बट what is minus P/V? Isn't it the slope of isothermal curve? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, dp/dv slope of adiabatic curve is equal to gamma times slope, यानी कि स्लोप किससे दिखाते हैं? dp/dv of which curve? Isothermal curve। तो बताओ, गामा का वैल्यू अगर शुरू होता है, मोनो एटॉमिक गैस देखोगे, इट इज 1.6 5/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन गामा इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस जो स्लोप होगा एडियाबैटिक का, dp/dv ऑफ एडियाबैटिक कर्व, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ विच कर्व? आइसोथर्मल कर्व। तो बेटा किसका स्लोप ज्यादा होता है? एडियाबैटिक कर्व का। मैंने कहा था इससे पहले भी, ये जो स्लोप है एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, इट इज क्वाइट फास्ट, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज क्वाइट स्लो। सो इट इज ऑब्वियस दैट जो स्टीप, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक होगा, दैट विल बी मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू द वॉल्यूम इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर आपको स्लोप आइसोथर्मल का दिया होगा, गैस पता होगा कौन सा है, तो उसी में एडियाबैटिक कर्व का स्लोप भी निकाल सकते हो। हियर वी हैव डिराइव्ड द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ adiabatic curve and slope of isothermal curve. Is that clear? So I hope that this slope is clear to you. So here I have finished the first two thermodynamic processes. One was the isothermal and the second is adiabatic. Now in the next lecture I will discuss certain numericals which are based on adiabatic process, and I will also discuss the isobaric process. What it is, what is specific heat, वो सारा कुछ explain होगा, ठीक है बेटा? So I don't want to skip even a single topic, okay? This is because this is very much important from competitive exam point of view, from board point of view. और एक चीज है कि if we take one more day, it doesn't affect us. So इससे क्या होगा? अगर एक दिन एक्स्ट्रा ही लग जाए, लेकिन पूरा explain करके मिल जाए points, पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, दैट इज मच बेटर। सो इंशाल्लाह यू स्टे कनेक्टेड, एंड इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू विद दिस thermodynamics till I finish it with good satisfaction. Thank you.